बच्चों कैसे हैं? बढ़िया। फिर से मैं आ गया, देखिए आपका आरिफ सर आपको लाइट पढ़ाने के लिए। तो आप रिकॉर्डिंग 1 और रिकॉर्डिंग 2 देख लिए होंगे। सो नाउ वी आर इनटू रिकॉर्डिंग 3. So in recording 2 we have completed the ray diagram where we have kept the object at center of curvature, right? So now we are going to see the next ray diagram. So here we are, so this is, चलिए फिर से छोटी छोटी रिवीजन. So this is, my dear student, concave mirror. This is focus, and you can take this as what? Center of curvature, and I'm keeping the object here. Is it clear? So ray comes, goes straight, after reflection it passes through the focus. So this is as per the rule. Clear? So next you can say it goes straight, and after reflection obliquely incident it goes like this. Clear? If you want you can use the rule passing through focus as well, passing through focus as well. So it goes straight, and after that, after reflection it becomes parallel. You see all the rays are meeting here. Okay, my dear student. So here you will get the image. So this is A, B. You can call this as A dash and B dash. Clear? Ray diagram में always you have to draw the arrow. Clear? Now tell me what is position of object. Object को कहाँ पे रखा आपने? कहाँ पे रखा आपने? You kept at between C and F. So you can write. So you kept between C and F. So what is position of image? So where did you keep the image? Where you got the image? You see here. ये location को क्या बोलते हैं? Beyond C. We call this as beyond C. Okay. Size of image. SOI. Size of image. So size of image is, you see, this is object and this is bigger than it. So you can say, you can use the word enlarged. Enlarged यानी बड़ा. Is it clear? So next is nature of image. Nature of image, real. Why real? Because you know the light rays are actually meeting at this point. So real and inverted. So my dear student, so this is the ray diagram where you kept the object between center of curvature and focus. Is it clear? चलिए. Now next I am going to see that draw the ray diagram where you kept the object at F. तो बच्चों ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? At F. क्लियर? आसान है ना? देखिए ये आपका बन गया सिल्वर्ड. सो दिस इज, तो इसको मैं मिट देता हूँ, इसको भी. सो दिस इज नॉट हियर. तो ये आपका फोकस, फोकस से डबल आपका C. सो नाउ आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट वेयर? फोकस मैंने रखा. लाइट रे विच goes parallel to the principal axis after reflection, tell me, passes through focus. Clear? And the light ray which is incidenting obliquely at the pole is reflected obliquely. ठीक है बच्चों, देखिए लाइट रे जा रहा है infinity now. So these two are the case. Now tell me where these two light rays are meeting. These two light rays will be meeting far at infinity. बहुत दूर जाके मिलेंगे वो, लेकिन मिलेंगे. ठीक है? तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा. ठीक है? तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? कहाँ पे रखा हमने बताइए स्टूडेंट?
एट एफ, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनता है, एट इन्फिनिटी। मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, याद है आपको, व्हेन वी केप्ट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वेयर इमेज वॉज फॉर्म्ड, image was formed at focus. Now you see it has become reversed. I have kept the object at focus. Now the image is formed at infinity. यानी उल्टा हो गया, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी में, इमेज बना फोकस में. नाउ आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी. इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज माय डियर स्टूडेंट? यू सी इन्फिनिटी में जाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, इमेज जो है बहुत बड़ा बनेगा. You will get a very big image. So you can say that what? Highly enlarged. Highly enlarged. बहुत बड़ा बनेगा my dear student. What is the nature of image? Again you are getting real and inverted. Real and inverted. My dear student, this is the case of microscope. ये कौन सा केस है बच्चों? माइक्रोस्कोपिक केस है. बिकॉज इन माइक्रोस्कोप व्हाट वी डू, वी कीप ए स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड द इमेज बिकम्स वेरी वेरी बिगर. तो यहाँ भी मैंने आपका ऑब्जेक्ट को छोटा रखा, नॉर्मल रखा जो भी है, और आपका जो इमेज है वो बहुत बड़ा इमेज बन गया है. क्लियर रे डायग्राम? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू द लास्ट रे डायग्राम. लास्ट रे डायग्राम बताइए कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा, सोच के बताइए कहाँ पे रखूँगा मैं. धीरे धीरे देखिए, आई एम कमिंग टूवर्ड्स द मिरर, राइट. नाउ आई कीप द ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड पी. आई विल कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी. नाउ यू ड्रॉ द रे डायग्राम. द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कम ऑन, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. Next, the light ray which is incidenting obliquely at the pole will be reflected obliquely. तो बच्चों ये दो रेज आपको लग रहा है कभी मिलेंगे, ये दे विल नॉट मीट बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. सो व्हाट यू विल डू, बताइए क्या करेंगे. लेकिन ये दो रे को आपको मिलाना ही है. इफ दे आर नॉट मीटिंग प्रैक्टिकली, we have to meet them virtually. How virtually? Bring the rays backward. तो रेस को क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे. देखिए रेस पीछे जा रहा है, तो रेस will meet here. Okay, so here you will get the image. So if this is A, B, this will be A dash B dash. तो आपको नया चीज़ समझ में आया होगा. If the rays are not practically meeting, we have to bring the rays backward to get them meet. Okay? So here you see the rays are meeting inside the mirror. अगर आप देखेंगे बच्चों, ये जो हिस्सा है पूरा, ये मिरर के अंदर वाला है. ओके, आप आईना देखते हो ना, तो आईने के अंदर में जो दिखता है वो ये सारा जोन है. तो यानी दिस इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर के अंदर. करेक्ट. सो हाउ विल यू चेंज दिस, आप बताइए. यहाँ पे बहुत आसान है, आप खुद ही सोच के बता सकते हो भाई. 6th केस में आ गए हम, बता ही सकते हैं आप. बताइए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, कम ऑन, वी केप्ट बिटवीन एफ एंड पी. एफ एंड पी. इमेज कहाँ बन रहा है, यू कैन कॉल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर के पीछे. साइज ऑफ इमेज बड़ा दिख रहा है, तो यू कैन राइट एनलार्ज्ड. हाईली एनलार्ज्ड नहीं लिख सकते, यू कैन राइट एनलार्ज्ड. व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, कम ऑन टेल मी, व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज. दिस इज virtual. Okay, why virtual? Because light rays are not meeting actually. और देखिए दिस इज स्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट, सो यू कैन राइट वर्चुअल एंड इरेक्ट. यानी मैंने आई केप्ट ऑब्जेक्ट लाइक दिस, आई गॉट द इमेज ऑल्सो लाइक दिस, सो आई विल कॉल दिस एज इरेक्ट. सो दैट मीन्स व्हाट इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ दिस केस. ये केस का स्पेशलिटी क्या लग रहा है आपको. फर्स्ट, दिस इज द केस इन विच वी गॉट द वर्चुअल इमेज.
सेकेंडली द वर्चुअल इमेज इज एनलार्ज्ड, वर्चुअल इमेज इज एनलार्ज्ड। तो बच्चों ये हमने कंप्लीट कर दिया 6 रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। हाउ मेनी रे डायग्राम? 6 रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। अब क्या थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि कॉन्वेक्स में जाएंगे? बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ भाई। चलिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ये चाहते हैं सर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप जैसे चाहते हैं वैसे करेंगे। आप ही के लिए तो हो रहा है ये सारा कुछ, ताकि आपका जीवन सफल हो सके, आप कामयाब हो सके। करेक्ट। चलिए अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो सबसे पहला देखिए बच्चों, ये आपका है बड़ा सा मिरर, कॉनकेव मिरर। इसको मैंने बना दिया एफ का डबल है सी। इज इट क्लियर? ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों ऑब्जेक्ट का लोकेशन। मैं क्या दिखाऊंगा बच्चों? ऑब्जेक्ट का लोकेशन। नीचे मैं दिखाऊंगा इमेज का लोकेशन। तो बच्चों अभी 1 मिनट में आपका सारा रिवीजन हो जाना है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला बात, आई केप्ट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। फर्स्ट केस इन्फिनिटी। वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ बच्चों 1 और ये है 1। ठीक है। सो आई केप्ट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। क्लियर? थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। नाउ आई केप्ट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ओके, वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, छोटा रहेगा। ये है केस नंबर 2। इज इट क्लियर? सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, इट इज डिमिनिस्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड चिपकाते रहिए 5th केस तक। क्लियर? नेक्स्ट इज C. Third, where did I kept the object? I kept the object at C. Image is formed again at C. Third मतलब third case. Image is formed at third C. Same size. Size is same. Next क्या कर रहे हैं आप? Next क्या कर रहे हैं आप? You kept the object between C and F. Very good. Very good. Where the image is formed. Come on. Beyond C. थोड़ा सा बड़ा, देखिए बड़ा हो रहा है। पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और थोड़ा बड़ा। करेक्ट? सब चीज़ ऑब्जर्व करिए बच्चों। नेक्स्ट, आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट वेयर एट फोकस, वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड, बड़ा, एकदम बड़ा। दिस इज केस नंबर 5, दिस इज केस नंबर 4। नेक्स्ट, आई केप्ट द ऑब्जेक्ट एट between F and P. Okay, this is case number 6. So where the image is formed behind the mirror. This is case 6. तो बच्चों अब ये फिगर भी बना लीजिए। ये सिंगल फिगर में सारा 6 रे डायग्राम्स आ जाता है। इज इट इज क्लियर बच्चों? चलिए वंस अगेन, इज इट क्लियर? तो बताइए, आई केप्ट द ऑब्जेक्ट एट infinity, image is formed at focus, point size, real and inverted. I kept the object beyond C, image is formed between C and F. Okay, diminished, छोटा है, diminished, real and inverted. I kept the object at C, image is formed at C, same size, real and inverted. Clear? Object is placed between C and F, between C and F. Fourth case, image is formed beyond C, enlarged, बड़ा है, enlarged. Object is placed at C. Fifth case, image is formed at infinity, highly enlarged. Object is placed between F and P, image is formed behind mirror, enlarged. क्लियर बच्चों? चलिए थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लें। U इज व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बच्चों ये क्या है? U। ये भी 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 क्या है? U।
ओके, एंड ऑल यूज आर नेगेटिव, सभी में देखिए क्या है बच्चों, नेगेटिव। ये भी बना दीजिए बच्चों, साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। सब नेगेटिव। वी व्हाट एक्सक्यूज मी, व्हाट इज वी इज इमेज डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस। तो फर्स्ट केस का ये वी, सेकंड केस का ये वी, थर्ड केस का ये वी, फोर्थ केस का ये वी, फिफ्थ केस का ये वी। तो बच्चों देखिए वी भी सब में क्या है, नेगेटिव। वी भी सब में नेगेटिव। इज इट क्लियर? चलिए, तो यू का साइन कन्वेंशन हो गया, वी का हो गया, एफ। इन ऑल द फिगर यू सी एफ इज हियर, एफ इज, दिस इज फोकल लेंथ। मैं थोड़ा सा फोकल लेंथ को अलग करके आपको दिखा रहा हूँ, ये है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का भी साइन कन्वेंशन हो जाएगा नेगेटिव। एच बच्चों, एच बताइए, तो ये है एच, एच एच, खतरनाक फिगर बन गया राइट, एच एच एच। तो इसको आप लोग जो है बना देना, लेकिन ये देखिए सब एच पॉजिटिव, सारे एच क्या है, पॉजिटिव। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, दिस इज व्हाट, एच डैश, दिस इज एच डैश, दिस इज एच डैश, दिस इज एच डैश, दिस इज एच डैश, यहाँ भी लिख देते हैं एच डैश, दिस इज एच डैश। ओके, नाउ टेल मी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? मैंने बताया था when you are measuring a distance below the pole you should put negative. So this h dash is negative, this h dash is negative. Okay, h dash भी हो गया, तो यानी h भी हो गया, h dash भी हो गया। So these are the sign conventions. My dear student, एक चीज़ मैंने नहीं लिखा, v देखिए यहाँ पे जो v है ये v होगा पॉजिटिव। v is what, याद है आप लोग को, v is, मैं लिख दूँ कहीं पे, u is object distance, v is image distance, h तो आपको मालूम ही है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश आपको मालूम ही है साइज ऑफ द इमेज, f आपको मालूम ही है फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ। तो बच्चों ये फिगर को मैं बोलूँगा 6 in 1 फिगर, बहुत ही यूनिक फिगर है, एक फिगर में सारी कहानी आ गई है। बस इसको मैं बोलूँगा ये चैप्टर का गॉड फिगर क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया बच्चों। देखिए केस 1 आ गया, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, ऊपर सारे ऑब्जेक्ट लोकेशन, नीचे इमेज लोकेशन। तो इसको बढ़िया से बना के रख लीजिए। ओके, तो चलो बच्चों टाइम वेस्ट बिना किए अभी मैं नेक्स्ट केस में जा रहा हूँ, विच इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। What is convex mirror? Come on, tell me. It is a mirror whose reflecting surface is curved outward. Whose reflecting surface is curved outward. Okay? चलिए बहुत बढ़िया। आपका कॉनकेव मिरर में there are only 2 ray diagrams. Sorry, convex में, I am very sorry. तो convex mirror में you have only 2 ray diagrams. Okay? Let's see how. मैं अगल बगल बना देता हूँ, नहीं एक एक करके बनाते हैं क्या है। So this is the figure of concave mirror. ठीक है बच्चों, तो आप इसको you can draw with the help of protractor as well. protractor का जो कर्वेचर है उसको यूज़ करके आप ये बना सकते हो। And you take this as roughly, so this is F, this is the pole. Okay my dear student, but mind it, आपका F यहाँ नहीं है, F इस तरफ में होगा और ये आपका होगा C। ठीक है बच्चों, why C will be here? Because you see this will be the sphere. So when this is the sphere, so this is the center of curvature. What is center of curvature? मैंने बताया था ना, center of curvature is the center of the sphere of which this mirror is a part. तो ये center of curvature होगा and this is the focus. Okay, now first case, the case 1 as usual, you know what, मैं यहाँ पे लिख दूँ, बताइए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को कहाँ रखना है, एट इन्फिनिटी। करेक्ट, जैसे रखे थे कॉनकेव में, यहाँ भी एट इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी से वॉट एवर रेज कम्स, ऑल द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे 1 एंड आफ्टर
hitting, what happens? The ray get reflected away from the focus. ऐसे लगेगा ये जो रे है ये फोकस से जा रहा है. ओके, एनी अदर रूल? वन मोर. यू नो ऑल द रेस, यहाँ से कोई भी रे टेढ़ा नहीं आएगा. ऑल द रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. समझ में आया बच्चों? एकदम रिलैक्स रहिए, लोकल रहिए, समझ में आएगा. ये भी टकरा के क्या होगा बताइए, क्या होगा? इट विल गो अवे फ्रॉम फोकस. थोड़ा सा बेंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, पैरेलल नहीं होगा, थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो देखिए ये दोनों रेस तो ऊपर जाके मिलेंगे नहीं, बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. सो व्हाट यू विल डू when the rays are not actually meeting, I told you we have to bring it back. तो हमने इसको backward extension किया तो पता चला exactly they are meeting at focus. Okay, so since the two rays are meeting at focus here, so the image will be formed at focus. So you can say the position of image will be at focus. Clear है? चलिए, तो व्हाट इज साइज ऑफ इमेज बच्चों? साइज बताइए, साइज क्या लग रहा है आपको? एक बिंदी दिख रहा है बस आपको, पॉइंट. तो बच्चों आप इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज. पॉइंट साइज. नेचर ऑफ इमेज, कम ऑन, नेचर ऑफ इमेज बोलिए. डू यू फील लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग? नो, लाइट रेज आर नॉट मीटिंग. वी हैव डन द बैकवर्ड एक्सटेंशन एंड वर्चुअली दे आर मीटिंग. सपनों की दुनिया में मिल रहे हैं, राइट, मिरर के अंदर मिल रहे हैं. तो अब इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या लगा देना है? इरेक्ट. चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम की. ठीक है, तो नेक्स्ट रे डायग्राम देखिए क्या होगा. सबको मिट दूं? चलिए फटाफट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया पोल. इसको और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ये हो जाएगा F, इसको डबल करेंगे ये बन जाएगा C. यहाँ पे कोई लैंडमार्क है ही नहीं, नो लैंडमार्क इज देयर, पूरा प्लेग्राउंड खाली है. सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आई विल प्लेस हियर. मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा बच्चों. ठीक है बच्चों, तो बताइए इसका लोकेशन क्या होना चाहिए? आई केप्ट द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. इन्फिनिटी और पोल के बीच में मैंने रखा. तो इसको क्या बोलूँगा बच्चों? बोलिए, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. इज इट क्लियर? चलिए, अभी सेम द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन? it goes away from focus, and the light ray which is incidenting obliquely will be reflected obliquely such that both the angles are same. तो बच्चों ये दो रेज कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे. ध्यान से देखिए, एक तो जा रहा है नीचे और एक जा रहा है ऊपर. तो ये दोनों रेज कहाँ से मिलेंगे? तो क्या करना है हम लोग को? बैकवर्ड एक्सटेंशन. तो वी विल डू दी बैकवर्ड एक्सटेंशन. तो ये रे बच्चों उसको पीछे लाते हैं, इसको भी पीछे लाते हैं. देखिए वो यहाँ मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा. तो बच्चों ये बन गया आपका इमेज, तस्वीर. आपका तस्वीर आईने के अंदर, ये बन गया इमेज. अब बताइए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज बच्चों? क्या लग रहा है आपको? सोचिए, खुद ही बताइए. पोजीशन ऑफ इमेज मैं नहीं बताऊंगा. इमेज कहाँ बना है बताइए? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. इज इट क्लियर? द इमेज इज फॉर्म्ड, यू विल राइट अगेन, बिटवीन पोल एंड फोकस. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज साइज ऑफ इमेज? इमेज का साइज बताइए बच्चों, छोटा है, बड़ा है, क्या है? सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज. तो यू कैन से दैट दिस इज स्मॉल. साइज से अच्छा बेटर वर्ड फिजिक्स में आता है, वो यूज़ करेंगे बच्चों, डिमिनिस्ड. क्या यूज़ करेंगे बच्चों? डिमिनिस्ड. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज को क्या बोलेंगे बच्चों? बताइए. नेचर ऑफ इमेज, इट इज वर्चुअल एंड
erect. Is it clear? Why virtual? Because light rays are not actually meeting, they are being met after doing the backward extension. चलिए बच्चों, ये हो गया. Yes, 2 ही रे डायग्राम है, 6 नहीं है इसमें, only 2 रे डायग्राम. 6 रे डायग्राम्स आर फ्रॉम कॉनकेव एंड 2 रे डायग्राम्स आर फ्रॉम कॉन्वेक्स. टोटल 8 रे डायग्राम. बस काम खत्म. चलिए 1 मिनट, इसका मैं ना आपको साइन कन्वेंशन थोड़ा बता देता हूँ जो कि आपको बड़ा मदद करेगा. आप बताइए बच्चों, U क्या है यहाँ पे? कम ऑन टेल मी व्हाट इज U. तो U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो ये है U नेगेटिव. आप जो भी रे डायग्राम बनाओगे काइंडली उसमें U, V, F, H डैश मार्क करिए साइन के साथ में. सो दिस इज U. व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? Image distance, this is V. V is positive because we are measuring the distance right of the pole, so it is positive. U is negative because we are measuring distance left of the pole. This is H. Okay, H is positive because we are measuring above the pole. H dash is also positive because we are measuring above the pole. Is it clear? F कितना आसान है, सोचिए, एकदम कार्टेशियन प्लेन की जैसे साइन कन्वेंशन है. और यहाँ पे F क्या आएगा बच्चों? F आ जाएगा आपका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, बिकॉज वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस, वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस राइट ऑफ द पोल. तो दिख रहा है बच्चों अच्छों से आपको? तो ये आपका हो गया साइन कन्वेंशन भी लगे हाथों. चलिए अब हम लोग 2 in 1 फिगर बनाते हैं. एक ही फिगर जिसमें सब कुछ हो, करेक्ट, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ डाउट रहना चाहिए, लेकिन समझ होना चाहिए सबको. डाउट है तो डाउट क्लियर करना है. चलिए बच्चों, तो अब मैं आपको मिला के बताता हूँ. तो ये आपका हो गया पोल एंड दिस इज सी. इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब बताइए तो कैसे करेंगे. ऊपर मैं बनाऊँगा, बोलिए, ऑब्जेक्ट लोकेशन, नीचे इमेज लोकेशन. ओके बच्चों, इमेज लोकेशन. चलिए फर्स्ट आई केप्ट ऑब्जेक्ट एट, कहाँ रखा मैंने? इन्फिनिटी. सो दिस इज केस 1. ओके, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. तो ये मैंने बना दिया 1. तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड. सेकेंड मैंने कहाँ रखा? यहाँ मैंने रखा. सो दिस लोकेशन यू विल कॉल इट एज नंबर 2 बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल वेयर द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड हियर. ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो ये बनेगा. चलो मैं बना देता हूँ यार. ये है नंबर 2. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये हो गया. अब फर्स्ट केस में ये बना आपका U विच इज़ नेगेटिव, और सेकंड केस में ये बना U विच इज़ नेगेटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव. ओके बच्चों, और आपका जो H है ये भी पॉजिटिव होगा. ठीक है बच्चों, दिस इज V इमेज डिस्टेंस, दिस इज V अगेन इमेज डिस्टेंस. साइन कन्वेंशन बच्चों, प्लस बिकॉज वी आर मेजरिंग राइट ऑफ इट. ओके, एंड दिस इज H डैश बच्चों पॉजिटिव, और यहाँ पे H डैश पॉजिटिव आएगा. एंड व्हाट इज F? F इज ऑल्सो पॉजिटिव. देखिए जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो राइट ऑफ पोल इट इज पॉजिटिव. आप जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो लेफ्ट ऑफ पोल इट इज नेगेटिव. जो भी डिस्टेंस अप पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस डाउन नेगेटिव. दैट्स ऑल, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है इधर. सो दिस इज 2 in 1 फिगर बच्चों, जिसमें मैंने U, V, H डैश F मार्क कर दिया है. इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, तो ये हमने आपको बता दिया है रे डायग्राम. ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर. क्या बताता हूँ? यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर. लेकिन इसमें मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. इज इट क्लियर? तो बच्चों रे डायग्राम आसान है. चलिए 1 मिनट में सारा रिवीजन करते हैं. कॉन्केव मिरर में कितना रे डायग्राम? बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए. 6 रे डायग्राम. कॉन्वेक्स में कितना रे डायग्राम? 2 रे डायग्राम्स. इज इट क्लियर?
चलिए अब कॉनकेव में फोकस करते हैं। मेरे को खाली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट को। पहले हमने रखा एट इन्फिनिटी, देन कम देन बियॉन्ड सी, एट सी, कम बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, खत्म। अब बताइए इमेज कहाँ से बन रहा है। पहला सी, इफ़ यू सी, आप देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट जो है पास जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द मिरर। ओके चलिए, तो इमेज कहाँ का बन रहा है, पहला कहाँ बना था, एट फोकस। चलिए मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ बच्चों, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहने से ब्रेन में नॉलेज नॉक होता है और मरता नहीं है नॉलेज। तो पहला मैं फिगर से बताता हूँ, बोलिए एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, खत्म काम। इमेज कहाँ का बना, इमेज, इमेज पहला फोकस, फिर बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, खत्म हो गया बच्चों। आप बताएं साइज के बारे में, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। और फर्स्ट केस रियल इन्वर्टेड, सेकंड केस रियल इन्वर्टेड, थर्ड केस रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, लास्ट केस वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इज इट क्लियर। चलो बच्चों अब यहाँ का वर्चुअलिटी में याद रखिए, हियर द वर्चुअल इमेज इज एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। चलिए अब मैं इसको चेंज करता हूँ, फटाफट से चेंज हो गया, फटाफट से करते हैं, फटाफट से करते हैं, एफ और पी, ठीक है बच्चों, सी सॉरी, और ये आ जाएगा पी। अब बताओ बच्चों कहाँ रखा आपने, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है, खाली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज, फिर नेचर। आई केप्ट एट इन्फिनिटी, वेरी गुड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, खत्म पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज खाली बताइए, इमेज फर्स्ट केस में कहाँ बना था, एट पोल, सेकंड केस में बिटवीन पोल एंड एफ, ठीक है। साइज का बताइए, फर्स्ट केस में हाईली डिमिनिस्ड, सेकंड केस में डिमिनिस्ड, फोर्थ केस वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिकॉज लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर मीटिंग आफ्टर गेटिंग बैकवर्ड एक्सटेंशन। इज इट क्लियर। अब इफ यू सी कॉन्वेक्स, ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में you only get virtual case. First, in convex mirror you get only the virtual image. दो केस है, दोनों में आपको virtual image ही मिलता है. Is it clear? Second, what is the difference between the virtual image of concave and convex? क्या difference है concave के virtual में, convex के virtual में, बताइए. Concave के virtual में what happens? It is enlarged. It is enlarged. And convex के virtual में it is diminished. It is diminished. Is it clear? Next, if you see concave mirror, you are getting different types of object. Diminished भी मिल रहा है, different types of image. Sorry, you are getting diminished also, same size also, enlarged also, highly enlarged also. Okay, but in the case of convex mirror, the image is always diminished. Image is always diminished. ये दो फ़र्क है, दो मेन डिफरेंस है. तो मैं दो मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया. क्या मेन डिफरेंस है बच्चों? तो पहला, इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर we are getting real image and virtual image. In the case of convex mirror we are getting only virtual image. In case of concave mirror we are getting diminished, same size, enlarged and highly enlarged image. But in the case of convex mirror we are getting only diminished image. Diminished image. तो बच्चों ये दो हो गया डिफरेंस. रे डायग्राम ख़त्म सब. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं. और आई होप अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए, क्वालिटी नॉलेज चाहिए, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें. करेक्ट. तो लोगों को रास्ता दिखाना भी बहुत अच्छा काम होता है. इज़ इट क्लियर?
अगर आपको लगे कोई रास्ता सही है, टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू वॉक इन द सेम पाथ सो दैट दे कैन ऑल्सो अचीव सक्सेस। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ। आई विल मीट इन द रिकॉर्डिंग 4 ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।